All right, so we will start with the author's note, I guess, author's introduction. The Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Spring क्या होता है? Spring is the a very blooming season, blooming climate change of our country, and lots of flowers are grown, lots and lots of plants and trees are grown in spring. Everywhere it is such a good environment, good atmosphere. The birds are chirping all the way. So spring is usually associated with positivity of your life, optimism of your life. कि आपकी लाइफ में बसंत ऋतु है, मतलब आपकी लाइफ में खुशियों के फूल खिल रहे हैं. द फ्लावर्स ऑफ हैप्पीनेस, द फ्लावर्स ऑफ what we can say, delight and pleasure are blooming, are flourishing, are nourishing in your life, and that is your spring. So, spring usually represents a positive aspect, a light aspect of your life. लॉस्ट स्प्रिंग मतलब जिस उम्र में आप बढ़ रहे हो, एक फूल जिस उम्र में खिलता है, जिस उम्र में आप बड़े हो रहे हो, आप एक टॉडलर से चिल्ड्रन से टीन में जा रहे हो, उस एज को अगर आप मिस कर जाते हो, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग. इस स्टोरी में दो डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं, टू डिफरेंट स्टोरीज आर मेंशन्ड हियर, एंड इन बोथ स्टोरीज there is an account of there is a tale of two children who have aspirations, who have hopes, who have dreams, but they could not fulfill their dreams because they do not have resources, they do not have access to proper education, they do not have the opportunities, they do not have the platform. All these privileged things that a child should have in his life, they are missing. और इस वजह से उनका बचपन जो है वो यूजुअल एक्टिविटीज में नहीं बीतता है. बचपन, स्प्रिंग मीन्स व्हाट? You are learning things, you are enjoying things, you are playing with your classmates, you are going on tours and trips with your parents, you are given gifts on your birthdays, your parents give you a lot of clothes and books, and all these things are part of your normal childhood. Education should be a part of normal childhood, but ये बच्चों के पास में वो opportunities नहीं है. Now let's come on to the author's introduction. Anees Jung. Anees Jung is an Indian author, or Anees Jung was born in Rourkela. She was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and the United States of America. I think eventually she shifted to USA. Her parents were both writers. She had writing skills in her DNA itself. Anees Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. That means she is a very well accomplished author. She is a very famous writer. She has been a part of editorial team as well. The following is an excerpt. हमें पता है excerpt मतलब extract. कोई बहुत बड़ा पेज होता है, उसमें से एक पैराग्राफ निकाल दो, that is the excerpt. Following is an excerpt from a book titled Lost Springs, Stories of Stolen Childhood. उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज कलेक्ट की, अलग अलग इंसिडेंट्स को इनकाउंटर किया, अलग अलग इंसिडेंट्स को पेन डाउन किया, और उनमें से दो स्टोरीज हमारे यहाँ पर मेंशन्ड है. Let's see what those stories are. Here she analyzes the grinding poverty. Grinding poverty means जो in-depth poverty है, जो poor को और ज़्यादा poor और ज़्यादा miserable बना रहा है, and traditions which condemn these children to a life of exploitation. और एक ऐसा vicious life cycle, एक ऐसा poisonous life cycle जिससे poor और ज़्यादा poor बनते हैं. और हम, अच्छा मुझे ये बताओ, इफ यू सी अ पुअर चाइल्ड, बी ऑनेस्ट, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनने का, बी ऑनेस्ट, इफ यू सी अ पुअर चाइल्ड अप्रोच टुवर्ड्स यू at a railway station or at a bus stop or at a temple place and he is begging for money, आप एक दो रुपए दे देंगे, 10 रुपए दे देंगे, 100 रुपए दे देंगे, बट स्टिल यू वुड वांट कि जल्द से जल्द ये बच्चा हमारी नजरों से चला जाए, जल्द से जल्द ये हमसे दूरी बना ले. He makes a distance from me as soon as possible. This is true or not? Yes or no?
हमें दया भले ही आ जाएगी, वी विल फील पिटी फॉर हिम, वी विल फील कंपैशन फॉर हिम, बट एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर डोनेटिंग सम सॉर्ट ऑफ मनी और सम कॉइन, वी विल ऑलवेज थिंक कि यार ये बच्चा चला जाए, ही इज नॉट लुकिंग वेल, ही हैज अ डिस्गस्टिंग अपीयरेंस, ही इज नॉट पुटिंग आउट गुड और क्लीन क्लोथ्स, तो ये यहाँ से चला जाए। तो वही है कि हमारे कंट्री में ये एक ट्रेडिशन है, ये एक कन्वेंशन है, ये इतने टाइम से चला आ रहा एक रिचुअल है, दैट वी क्रिटिसाइज दीज पीपल्स पॉवर्टी। अब ये उनका फॉल्ट नहीं है, this is the fault of the system, this is the fault of corruption, this is the fault of policies that have given them the state of poverty. तो उसी पॉवर्टी को हाईलाइट किया है, उसी करप्ट सिस्टम को हाईलाइट किया है अनीस जंग ने। इट इज वेरी मच सिमिलर टू द एलिमेंट्री क्लासरूम वाला पोएम। उसमें भी उनकी डाउन ट्रोडन लाइफस्टाइल को, पोवर लाइफस्टाइल को पिक्चर आउट किया था स्टीफन स्पेंडर ने, और बताया गया था कि कैसे अगर इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, अगर इनके लिए हम कुछ कदम आगे बढ़ाएं, तो ये लोग भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। In the similar fashion, we have two characters in the story, and let's start reading about one of those characters. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये कोट है हमारे फर्स्ट स्टोरी के हीरो का, जिसका नाम है साहिब ए आलम। साहिब ए आलम एक मुस्लिम नेम है आई गेस, और वो बोलता है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो अनीस जंग अपने आप को फर्स्ट पर्सन में रखकर उनसे पूछती है, ये नरेशन जो है वो फर्स्ट पर्सन में है, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। वो इंटरव्यू ले रही है साहब से, कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं साहब से, और वो क्या बोल रही हैं, व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. साहिब जो है वो अनीस जंग के नेबरहुड में जाता था, और वहां पे जितना भी गार्बेज, जितना भी रबिश, जितना भी डर्ट, जितना भी थ्रोन आउट वेस्ट होता था, उसमें से वो स्क्राउंजिंग करता था, सर्चिंग करता था। ही यूज्ड टू रमेज, आई एम राइटिंग द वर्ड्स नाउ, तो आप अपनी कॉपी में, बुक में नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। He used to scrounge, he used to search। ये जिसका भी वीडियो ऑन है, काइंडली टर्न ऑफ देयर वीडियोस प्लीज। टर्न ऑफ देयर वीडियो, अनुराग शर्मा। ऑलराइट, ओके। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, सर्चिंग बोल सकते हैं, रमेजिंग बोल सकते हैं। मतलब आप ढूंढ रहे हो किसी चीज को, दैट इज सर्चिंग, रमेजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। एक्चुअल गोल्ड नहीं। क्या गार्बेज डंप्स में, गार्बेज वेस्ट में आपको एक्चुअल गोल्ड मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। बट उनको अगर 1 रुपया भी मिल जाता है, एक सिक्का भी मिल जाता है, तो दैट इज अ वैल्यूएबल आइटम फॉर देम, दैट इज अ प्रेशियस आइटम फॉर देम। दे वैल्यू दैट 1 रुपी कॉइन इक्वल टू अ गोल्ड कॉइन, क्योंकि उनके लिए वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। So he always used to search for coins, search for items that can be precious, that can be valuable in the garbage dumps. आपने देखा होगा आपके आसपास जो प्लॉट खाली होते हैं, जो अबैंडन्ड लैंड्स होते हैं, उनमें यूजुअली ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट क्या, ये जो चिल्ड्रन होते हैं, ये आकर गार्बेज को कलेक्ट करते हैं। उसमें से कुछ भी वैल्यूएबल आइटम्स हो तो बहुत ही उनको मजा आ जाता है। एक वर्ड आता है बीच कॉम्बर्स। आई डोंट नो आप लोगों में से किस किसने सुना है, नहीं सुना है। क्या होता है बीच? हम जानते हैं बीचेस जो नदी के किनारे या ओशंस के किनारे जो बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लगा होता है, और बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहां पर अपने पिकनिक मनाने जाते हैं, दैट इज बीच। तो बीच में यूजुअली लोग अपने अपने प्रेशियस आइटम्स कभी कभी खो देते हैं। कोई अपना वॉलेट खो देता है, या हो सकता है किसी का 5 का सिक्का या 10 का सिक्का नीचे गिर जाए। तो दीज पीपल, जो ये बीच कॉम्बर्स होते हैं, वो रात को या शाम को जब सब जने चले जाते हैं, उसके बाद में आके बीच को
कॉम्बिंग करते हैं, आप सर को कॉम्ब करते हो, आप अपने हेयर को कॉम्ब करते हो, क्या मतलब है कि हेयर को स्ट्रेटन आउट कर रहे हो, जो भी आपके हेयर में डर्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे ही दीज बीच कॉम्बर्स कम एंड फाइंड प्रेशियस आइटम, वैल्यूएबल आइटम्स फ्रॉम द बीच सैंड, बीच डस्ट। तो वैसे ही ये बच्चे ऐसा काम करते हैं। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया है। ऑफ कोर्स साहिब इज नॉट लिविंग एट हिज प्रेजेंट होम राइट नाउ, वो कहीं से इमिग्रेट करके आए हैं, वो कहीं से अपने आप को ट्रांसफर करके आए हैं। सेट अमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। ढाका जो है वो अफगानिस्तान की कैपिटल है। If you know some sort of geographical knowledge, if you have, so Dhaka is the geographical capital of Afghanistan. Yeah, Bangladesh. Thank you very much for correcting me. बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो वहां से वो लोग इमिग्रेट करके आए हैं, ट्रांसफर लेके आए हैं। दे डिड नॉट हैव आई थिंक प्रॉपर ऑक्यूपेशन, या वहां पर नेचुरल डिजास्टर्स बहुत होते थे, इस वजह से उन्होंने अपना घर छोड़कर अब वो इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स हम समझते हैं आंधी तूफान जो आती है, स्ट्रॉन्ग विंड दैट कम्स, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म्स। So there were many storms that swept away their fields and homes. Of course, when there are severe winds blowing, they cause lot of harm. It's a natural disaster. So it swept away, it wiped away the beautiful fields, green fields and homes of the residents of Dhaka. Among कि ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका के बीच में कहीं साहब का घर था। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. अब जहां साहब रह रहा है वहां पर अब वो he looks for gold. Of course he does not find actual gold. जो चमकता हुआ येलो सोना है वो उसको नहीं मिलता है, but whatever good item, whatever worthy item he finds it, he consider it as a golden item. So uski mom usko batati hai, of course he does not have the proper memory, he is still a child. So when he immigrated from Bangladesh to India, he did not have the exact memory of his home. तो उसकी मॉम उसको स्टोरीज बताती है कि हम वहां रहते थे, हमारे इतने अच्छे अच्छे खेत हुआ करते थे, हमारा इतना अच्छा अच्छा बिजनेस हुआ करता था, but unfortunately, the natural disasters, the natural calamity that took place because of the heavy storms, because of the mighty storms, we had to abandon our homelands. We had to leave our homelands, and that is why we have come to India. और अब इंडिया में वहां पे उनको ऑक्यूपेशन प्रॉपरली नहीं मिला है, दैट इज व्हाई देयर चाइल्ड साहिब आलम हैज टू लिव in such a miserable condition. He has to look for any worthy item, any worthy product in the garbage of other people. I have nothing else to do. क्वेश्चन पूछा था ऑथर ने, अनीस जंग ने साहिब आलम से पूछा कि आप ऐसा काम क्यों करते हो, वाई डू यू हैव टू फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो साहिब का रिप्लाई है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, आई डोंट हैव एनीवेयर एल्स टू गो, मेरा यही काम है। ही मटर्स, ही विस्पर्स, वो कम आवाज में, लो विस्परिंग आवाज में वो बोलता है, लुकिंग अवे। Go to school, I say glibly. Glibly means straightforwardly. हम अपने शब्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो किसी को हर्ट होगा या नहीं होगा. We just straightforwardly blurt it out. We just straightforwardly say it out. उसको बोलते हैं glibly बोलना, carelessly बोलना, say something in an insincere way. Realizing immediately how hollow the advice must sound. Hollow means empty. अब एक पुअर बच्चे को बोलते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, भाई स्कूल जाना कोई इजी काम थोड़ी है. यू रिक्वायर अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, यू रिक्वायर प्रॉपर what we can say bag and books and notes and stationery and fees of the school. So all these things are required, और उसके बाद में your parents should be willing to send you to the school. All these factors play an important role in the education of the person, education of a student. तो अनीस जंग ने जल्दबाजी में बोल तो दिया कि व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल, बट बाद में उसको रियलाइज हुआ
Immediately she realized that she should not have said so. She, whatever advice, whatever suggestion she was giving, it was not practically possible. It was not a pragmatic approach. Practical को क्या और बोल सकते हैं? Pragmatic. प्रैग्मेटिक मतलब जो यथार्थ के रूप में हम जिसको सत्य नहीं कर सकते, मतलब विच कैन नॉट कम ट्रू इन प्रैक्टिकल लाइफ. क्या स्कूल जाने मतलब उसको बोलने से क्या वो स्कूल चला जाएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट ऑफ कॉजेज दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन. तो अनीस जंग ने बोल तो दिया गो टू स्कूल, बट इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. मूविंग ऑन. सॉरी, ऊपर कुछ मिस हो गया क्या? ओके, तो उसका रिप्लाई उसने क्या किया? साहिब आलम रिप्लाइज, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. तो जहां पर साहिब आलम रहता है, ऑफ कोर्स ऑल द पुअर पीपल, पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल आर लिविंग देयर, एंड they don't even have money for basic amenities, basic necessities. They can't even fulfill their stomach every day. तो स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है. तो ही सेज दैट देयर इज नो गुड स्कूल इन माय नेबरहुड. तो फिर मैं वहां जाके क्या करूंगा? अगर वो कोई स्कूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, इफ दे बिल्ड अ स्कूल इन माय नेबरहुड, आई विल डेफिनेटली गो टू द स्कूल. तो अनीस जंग कहती हैं कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली. ऑफ कोर्स अनीस जंग वाज नॉट सीरियस अबाउट इट, शी वाज जस्ट किडिंग, शी वाज जस्ट जोकिंग कि अगर मैं स्कूल खोलती हूँ, अगर मैं स्कूल ओपन करती हूँ, तो वुड यू बी कमिंग टू माई स्कूल? शी जस्ट आस्क इन अ वेरी ह्यूमरस मैनर, इन अ किडिंग वे. तो साहिब आलम replies, yes, he says, smiling broadly. He has a broad smile in his face. Of course, that smile was a smile of innocence. It was a smile of what we can say childhood. He was very sincere person. बचपन में सब sincere होते हैं, कोई malicious नहीं होता है. तो he smiled and he said, of course मैं आऊंगा. Yes. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो कुछ दिन बाद, इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद, साहिब आलम ऑथर के पास आता है और बोलता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? इज इट रेडी नाउ? तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. ऑफ कोर्स अनीस जंग ने जो ये बात कही थी स्कूल खोलने की, वो मजाक में बोली थी. शी वाज नॉट सीरियस, शी वाज जस्ट बीइंग in a very what we can say funny way, in a very humorous way, in a comical way she said it. But अनीस जंग की बात को साहिब आलम ने सीरियसली ले लिया और कुछ दिन बाद आके बोलता है कि आपका स्कूल रेडी हो गया. तो शी फेल्ट embarrassed, she felt mortified, she felt actually very bad for Sahib Alam, because she just said it in a humorous way. She did not meant to keep that promise. तो of course that promise was not meant to be fulfilled. तो वो बोलती हैं कि स्कूल इतने कम समय में नहीं बनता है. इट टेक्स अ comparatively long time to build a school. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. Very important line. Underline that line. क्या बोल रही हैं अनीस जंग जी? कि ऐसे promises उसकी bleak world में रोज के बेसिस पे मिल जाते हैं. मतलब every day, everyone promises Sahib Alam that your life will get better, that I will give you this, I will give you that, your downtrodden lifestyle will be improved, don't worry, बुरे दिन चले जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे. All these promises were fake. Bleak world means dark world. Bleak means dark or black. Black you can say, dark you can say. So his world was bleak, his world was dark. ऐसा क्यों? Because of course he was living in a very bad state of lifestyle. He was living in a very pathetic condition, in a miserable situation. So his world is called a bleak world. And such kind of promises, just like Anis Jung made, were very much made on daily basis, on regular basis in his world. यहाँ तक कोई डाउट है? Any word, any phrase, any sentence, any paragraph that you did not understand? So please explain this line again, okay? All right. अनीस जंग ने मजाक मजाक में प्रॉमिस किया था दैट अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल ओपन करूंगी तो क्या तुम उस स्कूल में आओगे? विल यू टेक पार्ट इन दैट स्कूल? एंड साहिब आलम वेरी ब्रॉड स्माइलिंगली सेड,
Of course, yes, I will come. He thought that Anis Jung was pretty serious about her promise. So after a few days, he came up to Anis Jung and asked, like, is your school is ready? Now Anis Jung is feeling bad. She's feeling mortified. She's feeling embarrassed. She's feeling what we can say pitiful towards साहिब आलम कि मैंने इसको यूं ही एम्प्टी प्रॉमिस कर दिया, इसको खोखला प्रॉमिस कर दिया, हॉलो प्रॉमिस कर दिया. बट देन शी रियलाइज दैट मेरे जैसे प्रॉमिस करने वाले इसको रोज के बेसिस पे मिल जाएंगे. In his dark world, in his poverty stricken world, such sort of promises are made on daily basis. पॉलिटिकल अथॉरिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स, पुलिस ऑफिसर्स, ये सारे लोग इनको प्रॉमिस करके चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. डोंट वरी, वी विल डोनेट फॉर यू, वी विल कंट्रीब्यूट फॉर यू, वी विल स्टैंड इन योर वेलफेयर. But nothing sort of that happens, and they go on living in a very dark world. What is the meaning of glibly? Glibly मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिना सिंसियरिटी के हम कुछ बोल जाते हैं. हम ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को ये बात कैसे अफेक्ट करेगी. दैट इज कॉल्ड ग्लिबली. Meaning of not even a distant memory. Distant means far away. So, of course, when Sahib Alam left his home, when they immigrated from Dhaka to India, Sahib Alam was very small. He was still a very small kid, so he did not even have a distant memory. He did not even have the faintest memory of what his homeland looked like. उसको नहीं पता था कि मेरा जो होमलैंड है, मेरा जो होम टाउन है, वो कैसा है. उसकी मेमोरी में वो फेड हो चुका था, उसकी मेमोरी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बिकॉज जब उन्होंने घर छोड़ा वो बहुत ही कम उम्र का था. गॉट इट दर्शन? ओके. After months of knowing him, I asked him his name. Of course, Anis Jung did not know his name just once in just one interaction. अब एक ही बार में उसका नाम नहीं पूछा था अनिस जंग ने. वो आता था उनके पड़ोस में, वो गार्बेज इकट्ठा करता था और उसमें से वो आइटम्स को ढूंढता था. तो काफी मंथ्स स्पेंड हो गए. उसके बाद में अनीस जंग को रियलाइज हुआ कि मुझे इसका नाम पूछना चाहिए. तो शी आस्क्ड हिम हिज नेम. साहिब आलम, ही अनाउंसेस, वो बोलता है, वो प्राउडली प्रोनाउंस करता है, अनाउंस करता है दैट माय नेम इज साहिब आलम. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. साहिब आलम का actual meaning क्या है? Lord of the Universe. इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि what is the irony in the name of Sahib Alam? What is the irony in the name of Sahib Alam? So what you have to write, Sahib Alam literally translates to Lord of the Universe. But Sahib was living a very miserable, poor, poverty stricken life. He was not at all Lord of Universe. He was scrounging the garbage, he was rummaging the garbage for any sort of valuable items. So his actual lifestyle had nothing to do with his actual name, with the meaning of his name. So there is a deep contrasting irony in the name and his lifestyle. समझ में आया? समझ में आया? उसका नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी. But was he the Brahmanda Swami? Was he the Lord of the universe? Of course not. He was living a very, very downtrodden, poverty stricken life. He even did not have proper education, proper clothes, proper living condition. तो वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कैसे हो सकता है? तो आयरनी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट. जो आप बोलते हो और जो आप करते हो उसमें जो डिफरेंस है, दैट इज आयरनी. तो हियर द नेम ऑफ द Sahib Alam is so thoughtful, is so meaningful. It has such a brilliant meaning behind it. But in the actual, in the realistic life, Sahib Alam was living an opposite life of his name. He was not the Lord of the universe. He was picking up garbage. He was rag picking. उसको बोलते हैं rag picker. साहिब वॉज अ रैट पिकर. वो बच्चे कुछ गार्बेज को, रिमेन्स को, और क्या बोलते हैं, वेस्ट को
इकट्ठा करता था, पिक करता था और उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल आइटम निकालता था. तो दिस वाज नॉट द लाइफ ऑफ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. अब समझ में आया सबको? एवरीवन इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? Yes, all right. तो he was of course not the lord of the universe. अगर मैं उसको अब मीनिंग बताऊं, अनीस जंग बोलती हैं कि if I tell him the meaning of the word, then he will not be able to believe it. वो believe नहीं करेगा. All right. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. Now, what is the lifestyle or what is the daily routine of Sahib Alam? वो क्या करता है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफ कोर्स देयर इज अ गैंग. अगर आपने ऐसे लोगों को देखा हो तो आप रियलाइज करेंगे कि दे डू नॉट कम अलोन. वो अकेले अकेले नहीं आते हैं. Rat pickers always come in some sort of team, some sort of gang. So these gang of boys come, they roam around, they wander around, they go from one street to another in search of garbage, in search of rags. And what they do, an army of barefoot boys. Barefoot means उनके पैर नंगे होते थे. They did not have proper shoes or proper slippers, proper flotters to wear. They were very much poor that they could not even afford what we can say to cover their feet. They were barefoot boys who appear like morning birds. कैसे सुबह सुबह birds जो हैं वो आती हैं, वो इधर उधर से दाना इकट्ठा करती हैं, इधर उधर से सीड्स इकट्ठा करती हैं, अपना फूड इकट्ठा करती हैं और दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे वापस अपने अपने घर में चली जाती हैं. That is the routine of a morning bird. In morning, they go out of their nest, they collect their food, they look for worms, they look for seeds, and they go back to their nest in the afternoon time and feed their babies at the in the nest. तो ऐसा ही रूटीन जो है वो साहिब आलम का था. They used to appear with his friends. He was barefooted. He did not have any shoe, any slippers. And they used to roam around. They used to wander around. They used to just go from one street to another and search garbage. And over the months, I have come to recognize each of them. इतने मन से रैक पिकिंग का काम चल रहा है, तब अनीस जंग हर एक बच्चे को, हर एक पर्सन को अच्छे से जानती है. Why aren't you wearing chappals? I ask one. अनीस जंग एक दिन किसी एक बच्चे को रोक के पूछती है कि why are you not wearing chappals? What is wrong with you? You should always cover your feet. Why are you not wearing chappals? So he replies or she replies, he replies, my mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. तो of course वो आंसर देता है कि मेरी मॉम जो है मुझे चप्पल शेल्फ से उतार कर नहीं देती है. इज देयर एन एक्चुअल चप्पल एट देयर होम? नहीं, उनके घर में चप्पल नहीं है, बट उसकी मॉम ने उसको बहाना बना के रख रखा है कि ये ऊपर से चप्पल मैं नहीं उतारूंगी, मैं ओकेजन पे दूंगी, जब हम शादी में जाएंगे तब दूंगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अभी 2-3 दिन पहले की घटना है. I was at a what we can say general store. I was purchasing some body lotion and face wash and such stuff. तो वहां पे एक आंटी खड़ी थी और उनका एक बेबी था. बेबी वॉज अराउंड आई थिंक 5 or 6 year old. तो ही वॉज लाइक मुझे सुपारी खानी है, मुझे सुपारी खानी है. तो उसकी मॉम ने बोला कि ठीक है आप 1 रुपए की सुपारी दे दो. तो उसके बच्चे ने 5 रुपए वाली सुपारी की तरफ इशारा करके बोला कि नहीं मुझे तो वो वाली चाहिए, आई वॉन्ट दैट बिग पैकेट. तो उसकी मॉम क्या रिप्लाई करती है, अरे वो सुपारी नहीं है, इट्स अ शैम्पू. वो तो बाल धोने के काम आता है और तू तो बाल साबुन से धोता है, तो यू डोंट नीड दैट. तो शी कन्विंस दैट गाय, शी परसुएडेड दैट चाइल्ड इन सच अ वे, इन सच अ फूलिश वे कि भाई ये तो सुपारी है ही नहीं, इट्स नॉट द बीटल्स दैट यू वांट, इट्स नॉट द कैंडी दैट यू वांट. तो वैसा ही बहाना, वैसा ही एक्सक्यूज क्या बोलते हैं उस मदर ने बनाया अपने बच्चे के लिए कि चप्पल जो है मैं अभी नहीं उतारूंगी. तो वो बच्चा बोलता है कि मेरी मॉम जो है वो ताक से, वो शेल्फ से उस चप्पल को उतारती ही नहीं है, तो मैं पहनूंगा कैसे. ऑल राइट. तो आई होप यू अंडरस्टूड today's session and today's lecture, and I really hope that आप आपके क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आज या कल में भेजूंगा वो इजीली कवर अप कर लेंगे.
Yes. All right, guys. If you have any kind of doubts in third level or last lesson or anything, so off chapter third level Mehak, I will send you the question answers of third level and you can complete it. All right. Bye, guys. Thank you very much. स्कूल इज लाइकली टू ओपन, हमारा कोई ऑफिशियल क्या बोलते हैं नोटिस तो नहीं आया है, बट न्यूज़पेपर्स में बोल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 16th ऑफ जनवरी से स्कूल्स रीओपन हो सकते हैं. बट स्टिल आई थिंक 13th और 14th जनवरी को उनका कुछ मीटिंग है. दे विल डिसाइड दैट इट इज गुड आइडिया और नॉट. सो आपको क्या लगता है स्कूल कब से ओपन होने चाहिए? सर प्लीज सेंड मी ऑल्सो क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ, अरे सबको भेजूंगा अक्षता, आपको अकेले को नहीं भेजना है, सबको भेजना है. आपको क्या लगता है नहीं होना चाहिए? अच्छा, नेक्स्ट सेशन से होना चाहिए या आफ्टर वैक्सीनेशन होना चाहिए? आप लोग घर पे कंफर्टेबल हो गए ना? लाइक यू गॉट यूज टू दिस रूटीन ऑफ taking the sessions and lectures from tomorrow. Stay safe and stay home. By so it should start from 18. Abhi, I don't know the exact date. All right. Bye, guys. Thank you very much. 18 को मंडे है. Yes, most probably 18 से start हो सकता है. Bye.